A warm welcome to all the students of class 6th. Hello students, how are you all? I hope you all to be fine, waiting for the results and again prepared for the studies. This time we are going to start with the term 2 preparation. So the videos are only meant for the chapters, okay? And now it's very compulsory for all the students to observe and watch the videos very carefully, because next time the question answers will not be given directly. All the questions will be there in the paper from the mid of the chapter. मतलब चैप्टर के बीच में से सब कुछ आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे. ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेज में भी कोई भी सेंटेंस मैं बुक में से नहीं दूंगी. ऑल द थिंग्स विल बी फ्रॉम आउटसाइड. Grammar will be taught, or we will study grammar in the live sessions every day. That means once in a week you will be having the live sessions for grammar in the writing portion. Next thing, the copy should be submitted at the proper dates which are issued to you, or which are mentioned on the app every time through a message. Many of the students have not submitted the notebooks still, so it's very compulsory that you have to make the notebooks, you have to do your work on time and bring it to the school for proper correction. Okay, so let's begin with chapter 7, folk tales from across the world. What is the meaning of folk tales? Folk tales are the stories which we hear in आर हाउसेस, जो हम अपने आसपास के लोगों से अपने घरों में सुनते हैं, साल पीढ़ी दर पीढ़ी जो कि सुनाई जाती है. कुछ कॉमन सी स्टोरीज उन्हें हम कहते हैं फोक टेल्स. जैसे फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. ओके, ये सब कहानियाँ कैसी है, पुरानी भी है, इनका एक मैसेज भी होता है, पर अभी भी ये बहुत प्रचलित है. इन्हें हम कहते हैं फोक टेल्स. जस्ट एज पंचतंत्र यू कैन सी द इन द पिक्चर, ग्रिम्स फेरी टेल्स दादी माँ की कथाएँ और परियों की कथाएँ, जातक टेल्स, फेरी टेल्स ऑफ पर्शिया. These are all known as the folk tales. Have you read any of the book? Have you read any of the books given above? Yes, we have read all the books. Do you know what the stories in these books are called? These stories are known as folk tales. Do these stories teach a moral lesson? Yes, they have a moral lesson. हर स्टोरी के साथ एक सीख या फिर एक मैसेज भी दिया होता है. Can you share a story that you have read with your classmates which imparts a moral lesson to the reader? क्या आप कोई ऐसी स्टोरी शेयर कर सकते हैं? You have to share their stories in your live classes which you can share with your classmates and which has a moral or which has a social message. Okay, so let's move on towards the stories. Let's read. Folk tales are the stories with no known authors. हमें पता नहीं होता कि कहानियाँ किसने लिखी, but still they are very popular and they grew out of the lives and imagination of the people. ये हमें लोगों की ज़िंदगी से कुछ सीख कर या लोगों के बारे में कुछ सोच कर विचार कर सीखने को मिलती हैं. दे ओरिजिनेटेड इन द एरा बिफोर लिटरेसी. और यही नहीं, इस पढ़ाई लिखाई से पहले, लिखने वाली और पढ़ने वाली चीज़ों से भी पहले ये कहानियाँ प्रचलित हुआ करती थी. एंड वर पास डाउन वर्बली, मतलब मुंह से बोलने वाली, मुंह ज़बानी हम एक दूसरे को सुनाया करते हैं. फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी. Folk tales were made up to explain the wonders of the world or to teach morals and lessons. Folk tales, लोक कथाओं का मेन काम क्या है कि लोगों के साथ क्या क्या चमत्कार होते हैं उसे बताना, आश्चर्यजनक चीज़ें जो संसार में घटती उसे बताना, या फिर कोई सोशल मैसेज या फिर लेसन देना. लेट्स रीड द फोक टेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट कल्चर्स. नाउ वी आर रीडिंग द folk tales from two different countries or from two different cultures. One is of China and the second one is of Persia. Okay, so first we will read for the Lord of the Cranes, folk tale from China. क्रेन क्या होती है? सारस. Cranes are large, long-legged and long-necked birds. There are 15 species of crane. Unlike the similar-looking herons, cranes fly with their necks outstretched, not pulled back. ये गले को सीधा रख के उड़ती हैं. A group of cranes are called construction, dance, sedge, seas or soup of cranes. Let's move towards the story. There are mountains in China which reach all the way up to the clouds. चाइना में ऐसे भी माउंटेन्स हैं जो इतने ऊंचे हैं कि ऐसा लगता है बादलों तक जा रहे हैं. हाई अप ऑन वन ऑफ दीज माउंटेन्स लिव्ड एन ओल्ड वाइज मैन. और इन पहाड़ों की ऊंचाई पर एक बूढ़ा समझदार सा आदमी रहता था. हिज नेम वाज टियान. क्या नाम था उस आदमी का? टियान, विच मीन्स हेवन. टियान का मतलब होता है हेवन. ही हैड फ्रेंड्स हु लिव्ड विद हिम अमॉन्ग द क्लाउड्स, द क्रेन्स. और उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर रहते थे उन बादलों के बीच में. वो कौन थे? द क्रेन, सारस. टियान फेड देम एंड केयर्ड फॉर देम. टियान उनको खाना खिलाता था और उनका बहुत ध्यान रखता था. द बर्ड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद टियान. दे स्पोक
और जो बर्ड्स थे इन रिटर्न अपने सारे एक्सपीरियंसेस टियान्स के साथ शेयर करते थे। वो बोलते थे दे स्पोक ऑफ द वंडर्स दे हैड सीन ऑन देयर फ्लाइट्स डाउन बिलो। वो अपने उन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते थे, या फिर ऐसे चमत्कार जो कि आश्चर्य वाली चीज़ें जब वो हवा में ऊंचे उड़ते थे और जो ज़मीन पे वो दिखती थी, वो सारे आश्चर्य, वो सारे एक्सपीरियंसेस वो टियान को सुनाते थे। टियान वॉज डिवोटेड टू दीज वर्ड्स एंड दे वुड डू एनीथिंग फॉर हिम। टियान वॉज दस कॉल्ड लॉर्ड ऑफ द क्रेन्स। कियान इनके प्रति बहुत समर्पित था, टियान इनका बहुत ध्यान रखता था, और ये सारस भी, ये बर्ड्स भी उतना ही उससे प्यार करते थे और टियान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। इसलिए टियान को लोग क्या कहते थे? लॉर्ड ऑफ द क्रेन्स, इन क्रेन्स का लॉर्ड, भगवान। वन डे टियान डिसाइडेड दैट इट वॉज टाइम फॉर हिम टू गो डाउन टू द सिटी। ही वॉन्टेड टू सी इफ पीपल रिमेंबर टू बी काइंड एंड जनरस। अब एक दिन टियान ने डिसाइड किया कि ये उसके लिए उचित समय कि उसे अब नीचे शहर में जाकर देखना चाहिए कि लोगों को ये याद है कि उनको दयालु बने रहना चाहिए, साथ के साथ जनरस मतलब उदार हृदय होना चाहिए, लोगों की मदद करने वाला होना चाहिए। लोगों में दया भाव है और उदारता है कि नहीं, ऐसा जज करने के लिए टियान ने सोचा कि मुझे अब सिटी में जाना चाहिए। सो द ओल्ड मैन कॉल्ड हिज क्रेन, सेटल्ड हिमसेल्फ ऑन इट्स बैक एंड फ्लू थ्रू द क्लाउड्स। इसलिए उस ओल्ड मैन ने, टियान ने एक क्रेन को बुलाया, उसके पीछे वो बैठ गया और वो लोग बादलों में से उड़ते हुए नीचे सिटी में जाने लगे। टियान रोम्ड अराउंड द सिटी एंड देन ही मेट अ बैगर। टियान ने उस पूरी सिटी का एक चक्कर लगाया और उसे कौन मिला? एक बैगर, एक भिखारी। वुड यू बी विलिंग टू एक्सचेंज योर क्लोज विद मी? आस्क्ड टियान। टियान ने उससे पूछा, क्या तुम अपने कपड़े मुझसे एक्सचेंज करोगे? द बैगर वाज शॉक्ड। ओह नो सर, व्हाई वुड यू वांट माय टोन ओल्ड रैग्स इन एक्सचेंज फॉर योर स्प्लेंडेड रोब्स? आपको मेरे, बैगर जो था वो बहुत शॉक्ड, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या बात है सर, आपको मेरे फटे पुराने कपड़े क्यों चाहिए आपके इतने सुंदर सजीले कपड़ों के बदले? फॉर योर स्प्लेंडेड मतलब भव्य, रोब्स मतलब भव्य कपड़ों के बदले मेरे फटे पुराने कपड़े क्यों चाहिए? टियान सेड, आई हैव कम टू टेस्ट द पीपल एंड नो वन मस्ट रिकॉग्नाइज मी। मैं यहाँ लोगों की परीक्षा लेने आया हूँ, इसलिए कोई भी मुझे पहचानना नहीं चाहिए। देन द बैगर अंडरस्टूड दैट टियान वाज नो ऑर्डिनरी मैन एंड ग्रेटफुली एग्री टू द एक्सचेंज। तब उस बैगर ने अंदाज़ा लगाया कि जो टियान है, अगर मुझे अपने इतने सुंदर कपड़े दे रहा है, मतलब ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, और वो सहर्ष राजी हो गया टियान को अपने फटे पुराने कपड़े देने के लिए। टियान ब्लेस द बैगर एंड वेंट ऑन हिज वे। टियान ने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसको बहुत सारे आशीर्वाद दिए और फिर वो अपने रास्ते पर निकल गया। Many days went by and Tian continued begging through the streets of the beautiful city. बहुत सारे दिन बीत गए और टियान वहाँ पर लोगों से भीख मांगकर या फिर लोगों से भिक्षा मांगकर काम चला रहा था। मैनी वेल्दी पीपल पास्ड हिम बाय बट नो वन सीम टू नोटिस हिम। बहुत सारे लोग उसके आसपास से निकल के गए, पर लोगों को किसी ने भी टियान को नहीं पहचाना। किसी ने भी नहीं पहचाना कि ये लॉर्ड ऑफ क्रेन्स उनके बीच में रह रहा है, या फिर जो लॉर्ड ऑफ हेवन है, लॉर्ड ऑफ हेवन वी कैन सिंपली से अ गॉडली पर्सन। किसी ने भी नहीं पहचाना कि गॉडली पर्सन हमारे बीच में रह रहा है। नॉट अ सिंगल पर्सन ड्रॉप्ड अ कॉइन इन टियान्स कप। और किसी ने भी उसे एक रुपया, एक सिक्का भी कभी उसके कप में भिक्षा नहीं दी। वन इवनिंग टायर्ड एंड हंग्री टियान अराइव्ड एट अ स्मॉल इन। एक छोटे से घर के पास टियान आया एक शाम को। तब वो बहुत ही भूखा था और बहुत ही टायर्ड भी था, बहुत ही थका हुआ था। द ऑनर हु वाज कॉल्ड वैंग स्माइल्ड एंड वेलकम हिम। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? जो उस मकान का ओनर था, उसने उससे पूछा, और उसका नाम क्या था उस ओनर का? वैंग। उन्होंने स्माइल करी और उन्होंने उनका स्वागत किया, और उन्होंने टियान से पूछा कि कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुड यू गिव मी अ लिटिल समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक? आस्क्ड टियान। टियान ने उससे कहा, क्या तुम मुझे खाने के लिए और पीने के लिए कुछ दे सकते हो? आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी टू पे यू। फिर टियान ने क्या कहा, अगर तुम मुझे कुछ खिलाओगे पिलाओगे तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। वैंग स्माइल्ड चीयरफुली एंड वेव्ड अवे द अपॉलॉजी। वैंग स्माइल्ड चीयरफुली। वैंग ने एक मीठी सी स्माइल दी, बहुत खुशी से उसने स्माइल दी, एंड वेव्ड अवे द अपॉलॉजी। और एक अपॉलॉजी, एक रिग्रेट वाली फीलिंग शो करी उसने, मतलब जो वेव्ड अवे मतलब जो टियान ने उससे अपॉलॉजी, एक जो वर्ड्स कहे थे कि आई एम सॉरी कि मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो उन्होंने उस बात को दिल पे नहीं लिया और बहुत खुशी से टियान का स्वागत किया। सिट डाउन, टेक सम रेस्ट। उन्होंने क्या कहा टियान से, बैठ जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। वैंग ब्रॉट द ओल्ड मैन अ वार्म बाउल ऑफ सूप, राइस, टी एंड अ प्लेट ऑफ सिजलिंग मीट। और वो क्या लेकर आया उनके लिए, टियान के लिए? अ बोल ऑफ सूप, राइस चावल,
टी चाय और प्लेट ऑफ सिजलिंग, सिजलिंग मतलब बहुत गर्म धुआं निकलता हुआ मीट. टियान्स हार्ट वॉज फुल एज हिज बेली व्हेन ही लेफ्ट द इन दैट इवनिंग. अब टियान का दिल बहुत खुश हो गया, जितना इतना खुश जितना कि उनका पेट भरा हुआ था इतना अच्छा खाना खाकर. Next evening, Tian stood again at Wang's door and asked him apologetically, "Please, sir, could I have a sip of rice wine and something to eat?" अगली शाम टियान फिर उन वैंग के दरवाजे पर आ गया और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, पर क्या फिर मुझे एक सिप मिल सकती है राइस वाइन की, मतलब थोड़ी सी राइस वाइन मिलेगी पीने को और कुछ खाने को मिल सकता है. इट्स माई प्लेजर एंड डोंट यू वरी अबाउट द कॉस्ट, आंसर्ड वैंग. अगले दिन वैंग ने फिर उनका स्वागत किया और कहा कि ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए. Okay, so that's all in this part of the chapter. We will move on to the next part in the next video. Thanks for listening.